Hello friends. Now in this series of class 11th accountancy we have reached up to chapter 15, which is a very fundamental question chapter, rectification of errors. So during the course of accounting we see that various clerks are doing that work, sometimes some computerized accounting is done, but still there are chances that certain errors are left. So when an error is there, so ultimately this error is detected when the trial balance is made or even after trial balance. That point of time, what is done, we simply pass entries not to delete the entire accounting procedure that we have done. So how to find out an error, and what is the procedure, what journal entry is to be passed just to rectify it. So this is the synopsis of this chapter. So first of all, what type of errors could be there, or where the bookkeeper can do error. The error can be done at the primary books, I have told you, in journal or in purchase book, sale book, whatever cash book, that can be done over there. Then after, at the time of posting, again some error could be done. Then while balancing the accounts, then error can be done. And when jotting down the balances of all the accounts on a trial balance, there also some error can be done. It may be a totaling error, it may be a posting error, it may be a jotting error, or it may be sometime writing a wrong amount or in wrong side, etc. Such type of errors could be there. So accordingly, the errors have been classified, taking into consideration these different types. What is rectification? So correcting the error of accounting by passing one journal entry is known as rectification. Certain errors are disclosed when you are going to make your trial balance, and if it does not agree to each other, so certain errors are detected over there. Errors of additions and subtractions, if any addition or subtraction or its multiplication is done wrong, so that can easily be detected because your trial balance will not match in that case. पोस्टिंग एट द रॉन्ग साइड, किसी गलत साइड में अगर आपने डेबिट या क्रेडिट में डाल दिया, क्रेडिट को डेबिट में डाल दिया, तो भी ये एरर डिटेक्ट हो जाएगी आपके ट्रायल में. इनकरेक्ट अमाउंट अगर आपने लिखा है बट एक साइड में, तो भी ये करेक्ट हो जाएगी, ये डिटेक्ट हो जाएगी. लेकिन दोनों साइड में अगर इनकरेक्ट अमाउंट है तो फिर इसका डिटेक्ट होना पॉसिबल नहीं. पार्शियल ओमिशन, ओमिशन मतलब होता है कोई चीज़ छूट जाना. अगर दोनों साइड में कोई चीज़ छूट गई है, डेबिट में भी क्रेडिट में, तो दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड फ्रॉम दी ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा. लेकिन अगर आपने एरर एक साइड में की है, डेबिट में लिखा क्रेडिट में नहीं, क्रेडिट में लिखा डेबिट में नहीं, तो ये पकड़ जाएगी, ट्रायल आपका मैच नहीं करेगा. रॉन्ग पोस्टिंग इन ट्रायल बैलेंस, जब आप ट्रायल बैलेंस में फिगर्स को जॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपने कोई गलत फिगर डाल दी तो भी ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगा. कुछ ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है लेकिन एरर्स छुपी रह जाती हैं, मीन्स योर ट्रायल बैलेंस इज नॉट एबल टू डिटेक्ट देम. एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन हो गया, कोई आपका ट्रांजैक्शन हुआ, उसको आपने कहीं भी नहीं लिखा, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, तो छुप जाएगी, वो तो दिखाई नहीं पड़ेगी. प्रिंसिपल की एरर, प्रिंसिपल गलत कर दिया, कोई प्रिंसिपल में किसी चीज़ को, जैसे आपको मैंने बताया, व्हेन यू आर गोइंग टू मीन्स ड्रॉ योर गुड्स फॉर द प्राइवेट पर्पस, तो मुझे सेल की जगह परचेज को क्रेडिट करना था, तो मैंने परचेज नहीं, गलती से सेल क्रेडिट कर दिया, तो भी एरर का पता नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ क्रेडिट करना था आपने कर दिया, एक हेडिंग नहीं किया दूसरा हेडिंग कर दिया, तो ये डिटेक्ट नहीं हो पाएगी. कंपनसेटिंग एरर, तो इसका नाम ही कंपनसेटिंग है, एक एरर ने दूसरी एरर को कंपनसेट कर दिया. तो एनी इफेक्ट ऑफ वन एरर इज नाउ कंपनसेटेड बाय येट अनदर मीन्स इफेक्ट ऑफ द अदर एरर, तो भी पता नहीं लगता. इनकरेक्ट अकाउंट इन द ओरिजिनल बुक्स, ओरिजिनल बुक में भी अगर आपने कोई इनकरेक्ट अमाउंट डाल दिया है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट, क्योंकि अगर इनकरेक्ट आपने एक जगह डाला है तो वहाँ से दूसरी जगह भी वो इनकरेक्ट ही चला जाएगा. पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया, आपको फंड्स मिले मीन्स एक्स से, आप उसको आपने वाई में क्रेडिट कर दिए, तो भी वो पता नहीं लगे, बिकॉज इसका जो होना था किसी एक जगह क्रेडिट होना था, दूसरी जगह क्रेडिट हो गया, बट हुआ तो क्रेडिट, तो दिस इज ऑल्सो नॉट डिटेक्टेबल. कितनी तरीके की एरर हैं? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर्स. तो अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं और आपको बताते हैं कि हाउ दीज एरर्स आर रेक्टिफाइड. ये थोड़ा सा कंप्रिहेंसिव चैप्टर है, तो लेकिन सिंस वी आर हैविंग मीन्स लिटिल टाइम,
तो मैं आपको इसके नटशल में कुछ चीज़ बताता हूँ विच विल बी हेल्पफुल टू यू वाइल डीलिंग विद दिस चैप्टर। एरर का मतलब, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, ओमिट हो गया। तो ओमिशन क्या हो सकता है, या तो दोनों साइड में आप भूल गए, आपने ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, दैट इज़ अनदर थिंग। कई बार ऐसा होता है पार्शियल ओमिशन हो जाता है। तो पार्शियल ओमिशन का मतलब कि वी हैव रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस आइदर इन द डेबिट और क्रेडिट साइड बट द सेकंड साइड इज ओमिटेड। तो वो एरर जो होती है वो आपकी ट्रायल बैलेंस पकड़ लेता है। एरर ऑफ ओमिशन मीन्स फॉरगेट टू राइट द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, इंटायरली भूल गए। अब ऐसे केस में क्या करना है, दिस इज वेरी सिंपल टू रेक्टिफाई, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है आपका रेक्टिफिकेशन का। इसको कुछ नहीं करना है, जो इसकी एक्चुअल एंट्री उस समय पास होनी चाहिए थी जब ये ट्रांजेक्शन हुआ था, वो एंट्री सेम आप अब कर दीजिए तो रेक्टिफाई हो जाएगा। कुछ चीज़ भूल गए हैं, किसी को आपने 200 रुपये देने थे, भूल गए, अब दे दीजिए, इट इज़ रेक्टिफाइड। गुड्स वर्थ ₹5,000, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, वर्थ ₹5,000 रिटर्न बाई ए कस्टमर वॉज नॉट रिकॉर्डेड। एक कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए जिसको आपने बुक्स में नहीं लिखा, राइट। तो कस्टमर ने अगर आपको रिटर्न किए तो बट नेचुरल सेल रिटर्न का केस था, आपने बेचा था, अब वो वापस आ रहा है और इसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया। इसकी रिकॉर्डिंग अब कर लेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जो उस समय होनी चाहिए थी सेम एंट्री अब कर लेंगे। दूसरा है गुड्स वर्थ ₹3,000 सोल्ड टू अनिल वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये रिकॉर्ड नहीं किया गया तो सेल की एंट्री क्या होती है, जिसको बेचा उसको डेबिट करिए बिकॉज वो रिसीवर है, और गुड्स जा रहे हैं उसको क्रेडिट करिए। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट इस केस में हो जाएगा अनिल अकाउंट डेबिट बिकॉज नेम इज गिवन, अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल। एरर्स ऑफ कमीशन, ओमिशन में हम भूल गए, लिखा ही नहीं, लेकिन कमीशन में हमने मिस्टेक कमिट कर दी, किया ट्रांजैक्शन किया लेकिन कोई गलती कर दी उसमें, तो वो होती है कमीशन। फॉर एग्जाम्पल अंडर कास्टिंग एंड ओवर कास्टिंग, टोटल कर रहे थे परचेज बुक का या सेल बुक का या परचेज रिटर्न का या कैश बुक का, कोई टोटल कर रहे थे, वो टोटल या तो कम हो गया या ज़्यादा हो गया, अंडर कास्ट हो गया या ओवर कास्ट हो गया। तो अब जैसे सपोज करिए परचेज बुक ये अंडर कास्ट हो गई है, इसको कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे, तो हमें मालूम होना चाहिए कि परचेज बुक का टोटल हमेशा डेबिट होता है। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, इट मीन्स परचेज एज ए डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस आपका अंडर कास्ट कम हो गया है, अगर डेबिट कम हो गया है तो हम और डेबिट करके सही कर लेंगे। तो आपने परचेज को और डेबिट किया, लेकिन ये सिंगल साइडेड एरर है क्योंकि एक बुक में ही गलती हुई है, दूसरी साइड में आप सस्पेंस खोल देंगे। तो इसका रूल क्या होता है, कोई चीज़ कम डेबिट हुई हो तो उसे और डेबिट कर दीजिए, कोई चीज़ ज़्यादा डेबिट हो गई तो उसको क्रेडिट कर दीजिए, कोई चीज़ कम क्रेडिट हुई है तो और क्रेडिट कर दीजिए, और कोई चीज़ अगर ज़्यादा क्रेडिट हो गई तो डेबिट कर दीजिए। सिंपल प्लस माइनस का साइन है, जो चीज़ ज़्यादा होगी उसे कम करिए, कम है तो उसे ज़्यादा कर दीजिए। दूसरा है सेल बुक, अब सेल बुक ओवर कॉस्ट हो गई है, बढ़ गया सेल बुक का टोटल, तो सेल बुक हमें मालूम है क्रेडिट की बुक है, तो क्रेडिट बढ़ गया है तो आपको क्या करना है, हमको उसको डेबिट कर देना, लेकिन सेल डेबिट करके सस्पेंस क्रिएट कर दिया। सस्पेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज सेकंड साइड इसकी ओपन है और इस एरर ने कहीं और कोई एरर पैदा नहीं की है। प्रिंसिपल की एरर्स कौन सी होती है, जो मैंने आपको 14-15 प्रिंसिपल बताए थे जनरल एंट्री के, वो प्रिंसिपल कहीं वायलेट हो जाता है तो उस टाइप की एरर को बोलते हैं हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में कई बार जो प्रिंसिपल होता है वो एक साइड में रहता है, कई बार दोनों साइड में। देखिए यहाँ पर है परचेज ऑफ बिल्डिंग वॉज पास्ड इन परचेज बुक। प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिल्डिंग की परचेज को हमने परचेज बुक में नहीं लिखना, परचेज बुक में सिर्फ गुड्स की परचेज लिखी जाती है, उसमें बिल्डिंग की और बाकी चीज़ों की परचेज नहीं लिखी जाती। यानी कि मुझे क्या डेबिट करना था, बिल्डिंग को डेबिट करना था, गलती से क्या कर दिया, परचेज डेबिट कर दिया। तो हाउ टू रेक्टिफाई, जिसको डेबिट करना था कर दीजिए, बिल्डिंग डेबिट नहीं हुई थी, बिल्डिंग डेबिट कर दिया, और द परचेज विच वॉज रॉन्गली डेबिटेड उसको क्रेडिट करके करेक्शन कर दिया। तो दिस इज द रेक्टिफिकेशन। सिमिलरली एक और है इसमें, वेजेस पेड फॉर 6,000 फॉर द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। ये एक और हमने आपको प्रिंसिपल बताया हुआ है, कोई एक्सपेंस अगर किसी असेट से एसोसिएटेड है तो आप उस एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे, उस एसेट को करेंगे। तो ये आपका 6,000 का बिल्डिंग एक्सटेंशन का अमाउंट था जिसको आपने वेज में डाल दिया, ऑर्डिनरी वेज में। तो गलती क्या की, हमने बिल्डिंग को डेबिट किया ही नहीं,
उसको कैसे रेक्टिफाई करें? बिल्डिंग डेबिट कर दें। वेजेस को रॉन्गली डेबिट कर दिया था, जो नहीं करना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दीजिए, वो रेक्टिफाई हो जाएगा। ये प्रिंसिपल की एरर्स हैं। कंपनशेटिंग एरर्स आर द लास्ट टाइप ऑफ एरर्स। ये कंपनशेट करती हैं, एक एरर एक जगह हो गई, उसका इफेक्ट जब जा रहा था तो वो किसी दूसरी एरर से न्यूट्रलाइज हो गया, इसको बोलते हैं कंपनशेटिंग एरर्स। तो मिस्टेक है जैसे पोस्टिंग में रॉन्ग साइड में, सैलरी पेड ₹500 वॉज क्रेडिटेड टू सैलरी अकाउंट। सैलरी को आपने डेबिट करना था, उसको क्रेडिट कर दिया, तो सैलरी डेबिट करके सस्पेंस डाल दीजिए, क्योंकि सैलरी सही होगी, वो आपने किया हुआ था। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सैलरी को आपने क्रेडिट किया जबकि करना था डेबिट, तो इस टाइप की एरर में अमाउंट डबल हो जाता है। कोई चीज़ आपने डेबिट करनी थी, उसे क्रेडिट कर दिया, आपने किसी को 200 रुपये देने थे, उससे 200 रुपये ले लिए, तब द डिफरेंस वुड बी ₹400। तो जब कभी भी डेबिट का क्रेडिट या क्रेडिट का डेबिट हो जाए, इट मीन्स बोथ विल बी एडेड, डेबिट और क्रेडिट दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम अमाउंट हो तो डबल हो जाएगा। अगर डेबिट का अमाउंट डिफरेंट और आपने उसको क्रेडिट डिफरेंट अमाउंट से किया है तो उनको जोड़ करके आपको डेबिट करना पड़ेगा। दूसरा है रेंट पेड ₹600 वॉज क्रेडिटेड टू रेंट अकाउंट एज ₹60। देखिए आ गई वो फिगर जो मैंने आपको बताई थी। अब ये ₹60 यानी कि एरर हुई है किसमें? पोस्ट हेडिंग में भी एरर हो गई और अमाउंट की भी एरर हो गई। तो ये ₹600 पे किया था, आपको ₹600 डेबिट करना चाहिए था रेंट में, आपने रेंट को क्रेडिट कर दिया 60 से। तो पहले तो रेंट को डेबिट करें 60 से, सो दैट इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड, और फिक्स 600 और डेबिट करें जो कि आपको रेंट में डेबिट करना चाहिए था। 600 वॉज रिक्वायर्ड टू बी डेबिटेड, जो आपने नहीं किए। 60 आपने रेंट में और क्रेडिट बल्कि कर दिए, तो नो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 660 एंड सस्पेंस विल बी 660। व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट? जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा होता बिकॉज ऑफ दीज एरर्स विच हैव बीन देयर, तो हमारा मैच नहीं करेगा। तो जब ट्रायल मैच नहीं करता तो वी कैन नॉट फॉरवर्ड इट टू द अकाउंट सेक्शन कि आप इसमें फाइनल अकाउंट बनाइए। हम उस समय फॉर द टाइम मीन उसको सस्पेंस अकाउंट से मैच करवा कर उनको दे देते हैं, एंड वी सी कि आप इसमें शुरू करिए। बीन वाइल वी आर फाइंडिंग द एरर्स एंड वी विल देन पास दीज एंट्रीज, जो अभी ऊपर आपने ये सब एंट्रीज की हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, व्हेन मिस्टेक्स आर डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड, सस्पेंस अकाउंट विल बी क्लोज्ड। जब ये जैसे जैसे रेक्टिफाई होती जाएंगी, किसी में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, किसी में क्रेडिट हो रहा है, जब ये आप सारा पूरा हो जाएगा तो अपने आप आपके ट्रायल से सस्पेंस हट जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जिसमें डिफरेंट टाइप की एरर्स हमने आपको बता दी, हाउ टू रेक्टिफाई दोज एरर्स। अगर वो हो जाती तो कैसे रेक्टिफाई करें, जर्नल एंट्री में किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो देयरफॉर इट शुड बी केप्ट इन माइंड डियर कि जर्नल एंट्री इज़ द फंडामेंटल बेस ऑफ योर अकाउंटिंग बिल्डिंग। अकाउंट की पूरी तो जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे जर्नल एंट्रीज में, उतना ही आपके लिए बेटर हो जाएगा। इन केस ऑफ एनी डाउट इन एनी ऑफ द चैप्टर, प्लीज़ कीप कॉन्टेक्टिंग टू अस। Now next will be a means bigger chapter, financial statement. So this will be taken in the next slot. So meanwhile, stay blessed. Thank you.